मैं हूं राज ठाकुर, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की दहलीज पर खड़े किसानों की खबर के साथ सरकार और किसानों के बीच बातचीत को लेकर आज तस्वीर साफ हो सकती है। किसान संगठनों की सिंघू बॉर्डर पर बैठक जारी है। दरअसल सरकार ने किसानों को बातचीत का न्योता दिया, लेकिन सरकार के न्योते में तारीख का जिक्र नहीं किया गया। उम्मीद है कि आज के मंथन में सरकार से मुलाकात का वक्त और तारीख तय हो। काबिल गौर है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत देश भर के विभिन्न राज्यों के सैकड़ों किसान संगठन लगातार केंद्र सरकार से तीनों कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और सरकार कानूनों में संशोधन करने के प्रस्ताव पर अड़ी हुई है। किसान संगठन और सरकार के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसमें कोई ठोस नतीजा अब तक निकलता हुआ नजर नहीं आया है। बहरहाल ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसानों का आंदोलन जारी, दूसरी तरफ किसानों की बैठक जो अभी चल रही है, और न्योते पर इस बैठक में यानी किसानों की बैठक में मंथन चल रहा है। चलिए सीधे रुख करते हैं सिंघू बॉर्डर का। ग्राउंड जीरो से संवाददाता पंकज कपाही लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पंकज, बैठक चलते हुए तकरीबन 7 घंटे हो चुके हैं और यह बैठक अभी भी जारी है। इस बैठक से किस तरीके से दिशा तय हो सकती है इस पूरे आंदोलन की, क्या अपडेट निकल रही है? राज 5:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੜੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਰਿਪਲਾਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕੁਝ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਤੀ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕੁਝ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸੇ ਆਪਣਾ। ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਗੱਲ ਨਿਬੜੇਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਨਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੌਸ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿੱਧੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। 5 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ 5 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਕੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿन किसान जथेबंदियां के ध्यान दे सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल पंकज दूसरी तरफ आप लगातार बीजेपी के नेताओं से भी टच में हैं, उनसे भी आप बयान ले रहे हैं। हरजीत ग्रेवाल का वो बयान भी याद आ रहा है कि कुछ ऐसे लोग बीच में हैं,
कुछ लोग ऐसे भी बीच में है जो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो डेडलॉक है वो खत्म ना हो। क्या किसान भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर कुछ और राय रखते हैं? ਰਾਜ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 42 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 42 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਰੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੌਸਲੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਘਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਜਾਂ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧੇ। ਇਹ ਲਗਭਗ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 7 ਤੋਂ 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ नहीं करेंगे। और किसी एक फैसले पर सभी पहुंचे, शायद इसी के लिए यह बैठक इस वक्त चल रही है और तभी 7 घंटे से ज्यादा का वक्त इस बैठक को चलते हुए हो चुका है। बेहद शुक्रिया पंकज, लेकिन हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए कि क्या इस बैठक से निकला, किस निष्कर्ष पर किसान जथेबंदियां पहुंची। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर इसी से जुड़ी है। आढ़तियों की हड़ताल के चलते पंजाब के ज्यादातर शहरों में मंडियां बंद रही, लेकिन देश की सबसे बड़ी मंडी खन्ना में हड़ताल का खासा असर देखने को नहीं मिला। बता दें कि आयकर विभाग की छापेमारी से खफा आढ़तियों ने हड़ताल का ऐलान किया। आढ़तियों ने ऐलान किया कि 4 दिन के लिए पूरी अनाज मंडी को बंद रखा जाएगा। इस दौरान किसी भी व्यक्ति से कोई लेन देन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ना ही कोई सब्जी की खरीद की जाएगी। हड़ताल के बाद किसानों को परेशानी झेलनी पड़ी है क्योंकि गेहूं की फसल का सीजन शुरू हो चुका है। फसल की देखरेख के लिए किसानों को पैसे की जरूरत पड़ती है। हर साल इस सीजन के दौरान आढ़ती ही किसानों की मदद करते हैं, लेकिन इस बार आढ़ती एसोसिएशन के गुस्से का सामना किसानों को भी करना पड़ा है। ये 2 तस्वीरें, आढ़तियों ने हड़ताल का ऐलान किया। भटिंडा और खन्ना की तस्वीर, भटिंडा में असर दिखा, लेकिन खन्ना एशिया की सबसे बड़ी मंडी में इसका कम ही असर दिखा। और अब बड़ी खबर, लंदन से लौटे 8 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जो अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुई थी फ्लाइट, उसमें से 266 यात्रियों में से 8 यात्री कोरोना पॉजिटिव अमृतसर एयरपोर्ट पर सैंपल लिए गए थे। 5 यात्रियों के सैंपल एनसीडीसी रिसर्च के लिए भेजे गए। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको दे दें कि ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पहले आंकड़ा 3 का था, फिर 5 पर पहुंचा, फिर 6 पर गया और अब 8 यात्री जो लंदन से अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरे हैं। जब फ्लाइट लैंड हुई है, रात 1 बजे फ्लाइट लैंड हो चुकी है और तब से लेके अब तक आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 घंटे का समय तकरीबन हो चुका है। माफ कीजिए, 16 घंटे का वक्त तकरीबन हो चुका है और अभी भी जो लोग हैं वो पॉजिटिव आते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुश्किलें जरूर बढ़ी ऐसे यात्रियों के लिए जो पॉजिटिव आए हैं और उसके साथ साथ जो उनके साथ उस फ्लाइट में थे, अब उन्हें भी जो जरूरी गाइडलाइंस है, जरूरी नॉर्म्स है, उनका पालन अवश्य करना होगा, क्योंकि ब्रिटेन में हम देख रहे हैं कि एक अलग तरह से कोरोना वायरस का जन्म हो चुका है। एक अलग स्वरूप में कोरोना वायरस नजर आ रहा है और कोरोना की नई स्ट्रेन सामने आई है जिसमें अलग अलग चीजें देखने और सुनने को मिल रही है। जहां ब्रिटेन इसे बहुत खतरनाक मान रहा है, WHO की तरफ से एक सुखद खबर यह भी आई कि ज्यादा खतरनाक, घातक इतना भी ये नहीं है जितना पहले का वायरस था। बहरहाल अभी शुरुआत है, इसलिए शायद भिन्न भिन्न आप कह सकते हैं अप्रोच हर किसी की रह सकती है, लेकिन आने वाले वक्त में जरूर क्लैरिटी इस पर मिलेगी। लेकिन इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर कि लंदन से अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुई फ्लाइट जिसमें 266 यात्री थे, उनमें से 8 यात्री कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। अमृतसर एयरपोर्ट पर उस समय भारी हंगामा हो गया जब लंदन से आई फ्लाइट की एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई। लैंडिंग के बाद यात्रियों को एयरपोर्ट स्टाफ ने अंदर ही रोक लिया और उन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया। ये तस्वीरें अमृतसर एयरपोर्ट की हैं, जहां पुलिस के कर्मचारियों और सिक्योरिटी कर्मचारियों के साथ कुछ लोगों की बहस होती नजर आ रही है। इनको देखकर जहन में पहला सवाल तो यही आता है कि ये लोग कौन हैं।
क्यों हंगामा कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि ये सभी मुसाफिर हैं जो देर रात यूके से यहाँ पहुंचे। यूके मतलब ब्रिटेन, जहां पर कोरोना की एक नई समस्या खड़ी हो चुकी है, जिस वजह से प्रशासन ने इन सभी मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया और अब इनको घर नहीं जाने दिया जा रहा, जिस वजह से इन लोगों ने हंगामा किया और सिक्योरिटी ऑफिसर्स और डॉक्टर इन मुसाफिरों को समझाते रहे। ये एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट के बाहर इन मुसाफिरों के परिवार वाले भी हंगामा करते नजर आए और प्रशासन पर जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया। ਉੱਥੇ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਕੇ ਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਲਾਸਟ ਫਲਾਈਟ ਲੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ RT-PCR ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 6-7 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੰਯਮ ਵਰਤਨ। ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਟੈਸਟ, ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ होगा, कोई सिस्टम नहीं। ये 242 मुसाफिर स्पेशल फ्लाइट के जरिए यूके से आए हैं और अब इन सभी मुसाफिरों का स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टेस्ट करवाया जाएगा और कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही घर जाने की इजाजत मिलेगी। पहले तो गवर्नमेंट ने कल से जो 22 से ये सारी फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। सो ये स्पेशल फ्लाइट होने के कारण इनका सभी का जो 242 पैसेंजर है, जो भी पता लगा है, एग्जैक्ट नंबर तो जब हम काउंट करेंगे एंड में तो पता लगेगा, तो इनका सभी का RT-PCR टेस्ट होना है। सो इट मे टेक अराउंड 6 to 8 hours और मोर देन दैट। सो पैसेंजर्स हैड टू स्टे इन एयरपोर्ट फॉर दैट टाइम। ब्रिटेन में कोरोना की नई समस्या को लेकर भारत सरकार ने यूके से आने वाली सभी फ्लाइट्स को 31 दिसंबर तक सस्पेंड कर दिया है, लेकिन देर रात पहुंची इस फ्लाइट को रोकना मुश्किल था, जिस वजह से सभी मुसाफिरों को अमृतसर एयरपोर्ट पर रोका गया और अब कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही घर जाने की इजाजत मिलेगी। नहीं तो अंदेशा है कि देश में पहले से चल रहा कोरोना और भी पैर पसार सकता है। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਜਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 12:05 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 10 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਰਾਤੀ 12:05 ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 242 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂरत है। अमित शर्मा, न्यूज़ 18 अमृतसर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें। बच चुका है, चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं 3 चरणों में मतदान होंगे, यानी 17, 19 और 21 जनवरी को यहां छोटी सरकार के लिए मतदान होना है। देवभूमि हिमाचल में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 1 और 2 जनवरी को नामांकन दाखिल होगा, 4 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी, 6 जनवरी को प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं, 6 जनवरी को ही चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। इसके बाद मतदान प्रक्रिया शुरू होगी, जो 3 चरणों में होगी, 17, 19 और 21 जनवरी को। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा, 22 जनवरी को मतगणना होगी। हिमाचल में 3615 पंचायतों के 21,384 वार्ड्स के लिए चुनाव होगा। 412 नई पंचायतों का गठन हुआ है। कुल 23 पंचायतें नए नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में शामिल की गई। पंचायतों में 3615 प्रधान और उप प्रधान चुने जाएंगे। कांगड़ा में सबसे अधिक 4785 वार्ड्स हैं। इसके अलावा मंडी में 3271, शिमला में 2304, चंबा में 1771, ऊना में 1555, सोलन में 1524, सिरमौर में 1601, हमीरपुर में 1430, कुल्लू में 1387, बिलासपुर में 1140,
किन्नौर में 389 और लाहौल स्पीति में 227 वार्ड हैं। पंचायत समिति के कुल 1792 वार्ड में चुनाव होगा। हालांकि शिमला जिला और मंडी के धर्मपुर ब्लॉक में प्रधान पद का चुनाव अभी नहीं होगा। यह मामला अभी हाईकोर्ट में है, लेकिन वार्ड सदस्य, बीडीसी सदस्य, उप प्रधान और जिला परिषद का शेड्यूल कॉमन रहेगा। चुनाव की अधिसूचना के साथ ही जहां जहां चुनाव होने हैं वहां पर आचार संहिता लागू हो गई। ग्राम पंचायत के समस्त वार्ड्स के लिए मतदान सूचियां तैयार कर ली गई है। अगर किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हुआ है तो वो 23 दिसंबर 2020 तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकता है। प्रदीप ठाकुर, न्यूज़ 18 शिमला। तो 17, 19 और 21 जनवरी को मतदान है और बेहद महत्वपूर्ण चुनाव आप इसे कह सकते हैं। आप इसे छोटी विधानसभा का चुनाव भी कह सकते हैं और हिमाचल इसके लिए पूरे तरीके से तैयार है। लेकिन मंडी और शिमला में प्रधान पद के लिए चुनाव नहीं होंगे। बाकी जो सीट्स है उप प्रधान से लेकर अन्य उन तमाम सीटों के लिए चुनाव होंगे। इस बुलेटिन में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।